حضرت مولانا علی میاں کو یہ آکسفورڈ سینٹر کے بارے میں سارے حقائق لکھے تھے، یہودیوں نے کس کام مقصد کے لیے قائم کیا، اور آج بھی اکثر اس کے ٹرسٹ یہودی ہیں. اور پھر مولانا رابی نہیں آئے، مولانا سلمان نے وہاں جانا چھوڑ دیا. تو آج کوئی آسان ہے ثابت کر سکتا ہے کہ اس مقصد کے لیے امت میں انتشار کے لیے سے کام کیا اور علی میں جاتے رہے وہاں. ہم نے تو علم و تحقیق کا پہلا آدمی جو گیا تھا محمود غزنوی کے ساتھ، ابو ریحان بیرونی، اس نے کتاب الہند لکھی، ہندو بن کر رہا، سنسکرت زبان سیکھی، سارے حقائق زندگی کے بہترین 10 سال کھپائے، وہی ہمارے پاس. ورنہ ان مولویوں نے ہزاروں سال ایک بھی تحقیق کتاب نہیں لکھی. وہ سجاد نعمانی ہاں ڈینگے مارتے رہے کہ میں نے ہندوؤں میں اتنا کام کیا، ان کے بڑے بڑے جتنے ہیں وہ مسلمان ہونے والے ہیں. ایک مضمون بھی ڈھنگ کا نہیں ہے. تو میں کر رہا تھا کہ علمی کام اتنا کوئی مولوی کرنے تیار نہیں. ابھی بھارت میں جو فتنہ زبردستی ہندو بنانے کا کھڑا ہوا ہے. رام پر میں نے کتاب لکھی، ہندی میں بھی چھپ گئی ہے، انگلش میں ہو رہی ہے، کہ گزشتہ 300 سال میں برطانیہ، فرانس کے علاوہ ہندوستان کی یونیورسٹیاں اور جن لوگوں نے کام کیا سینکڑوں ہیں، وہ زندگی کے برس لگائے، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ رام ایک فرضی کہانی ہے. بعض کا کہنا ہے کہ رام سیتا سب سامی نسل نام ہے، یہ ہو سکتا ہے ایجپٹ کی کہانی ہو، مصر کی. ہاں کیونکہ مصر سے آیا تھا نا یہ سارے جو برہمن کہلاتے ہیں 3% ہیں، اور 3000 سال ان کی حکومت ہے، باقی سب غلام ہیں. تو مولویوں نے نہ تاریخ میں کام کیا نہ ہندو. بھائی اس مذہب کو پہلے پڑھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، ان کی نفسیات کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا قائد کیوں ہے. یہ ابھی خالد سیف اللہ کا خط پرسوں اس میں واٹس ایپ پر پڑا تھا کہ ہمیں ہندو مذہب کا مطالعہ، مولویوں کو ایسے 50 آدمی پیدا کرو جو ڈیبیٹ کر. بھائی کیا مطلب کیا ہے آپ کا؟ ہندو مطالعہ دو طریقے ہو سکتا ہے. ایسا تو 4 طریقے ہیں، لیکن 2 طریقے بتاتا ہوں. ایک تو جس طرح آج ہم مولوی کر رہے ہیں کہ بھائی توحید ان میں بھی ہے، رسالت کا تصور ان میں بھی ہے، آخرت ان میں بھی ہے، لہذا کیا سب برابر. اور ایک کو جو نبیوں کا، کہ نبیوں کا بنیادی کام تھا مورتی پوجا، ہاں بلکہ حضور نے ہر قبیلوں کو کہا اپنے مورتوں کو، اپنے بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑو. سارے نبیوں کا مقابلہ کس نے کیا؟ مورتی پوجا کرنے والا. حضرت نوح علیہ السلام جو آدم ثانی ہے، ساری اولاد اس توحید موحد کی اولاد ہے. یغوث و یعوث و نصر، سارے ان کے جو مورتیاں تھیں نا پوجی، ان کے قرآن نے ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے کہ ان کا باپ کیا کہا تھا؟ مورتی پوجا. ساری تکلیفیں جو کچھ آگ میں ڈالنا سب کچھ کس نے کیا؟ مورتی پوجا والوں نے. قرآن نے بھی صاف کر دیا قیامت تک کے لیے تمہارے سب سے شدید دشمن کون ہو گئے؟ یہود والذین اشرکوا، اور مورتی پوجا کرنے والے. تو کیا مطالعہ کرنا چاہیے کہ ہندو مذہب اسلام سیم سوا ہے، دونوں میں توحید ہے، دونوں میں رسالت ہے. کیا بکواس ہے یہ؟ نبیوں کے طریقے پر کہ شرک کو مٹانا ہے، مورتی پوجا کو مٹانا ہے، یہ آج کوئی ہندوستان کا مولوی بولے گا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ کوئی، یعنی واقعی یہ ہے کہ مولانا منظور نعمانی نے ایک بار مجھے فرمایا تھا، میں نے زندگی میں مولانا ابو المحسن سجاد سے زیادہ ملت کا درد و غم رکھنے والا اور بصیرت رکھنے والا، ان کی زندگی ایک کیا قربانی، ان کی کس طرح ایک گئے لوگوں کو حیضہ پھیلا تھا اور شہید ہو گئے. بیٹا جب جوانی میں فارغ ہو کر آیا اور بیوی پاگل، یہ کیا کر، ان کی کوشش تھی کہ مسلمان ایک اپنا نظام بنا لے، امیر بنا لے. امارت کی بغیر زندگی جہالت کی زندگی ہے. روتے رہے حضرت مدنی کے سامنے جا کر، ناک رگڑتے گڑگڑاتے، حضرت کچھ کر. حضرت مدنی تو ان سے متاثر ہو گئے تھے، ان بدماش کانگریسیوں سے. ہاں ٹھیک ہے، ان کی بات اپنے طور پر ٹھیک تھی،
मसलन वो जमहूरियत की हिमायत की थी उन्होंने। ठीक है, वहां दो ही बातें थी, या तो हिंदुत्व आ रहा था, हिंदू धर्म पूरी सख्ती के साथ सबको हिंदू बनाना है, उसके मुकाबले में जमहूरियत ही हो सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अकाबी परस्ती के नाम पर मौलाना अरशद मदनी यहाँ पर आए, अरशद मदनी यहाँ पर 100 कदम दूर पर आली डेन पाकिस्तान और बांग्लादेश के मौलवियों ने पूछा कौन सा निजाम, कहते जमहूरियत। बस तुम भूल गए अपने निजाम को जो अल्लाह के नबी ने चलाकर दिखाया, खुलफा राशिदीन ने, और वक्तन फक्तन लोग उठते रहे, वो निजाम ही भूल गए। ये फजलुर रहमान, हाँ, ये इसका कारूर एक तो शियों से मिलता है, ये रावजी पूरा खानदान, और एक नवाज शरीफ जैसा लुटेरा एजेंट फजलुर रहमान खुद का है। नहीं, भारत का जो पूरा मीडिया, पूरे स्कॉलर, अब कौन है ये ब्राह्मण के गुलाम। जो भी आदमी जाएगा उसको जबरदस्ती उसके नकायस निकाल कर उसको पाकिस्तान है इसलिए, पाकिस्तानी है इसलिए भारत का दुश्मन साबित। मौलाना फजलुर रहमान 10 मरतबा एक लफ्ज इनके खिलाफ, क्योंकि अपने आदमी है। हाँ, और फिक्र फलसफा भी इसका वही है, वन नेशन थ्योरी वाला, हम हिंदू भाई भाई। तुम्हें पाकिस्तान में रहने का हक किसने दिया? पाकिस्तान की बुनियाद 2 नेशन थ्योरी है। और जिस तरह मौलियों ने, भाई कायदे आजम मौलियों का एक तरह का ये दीनदार नहीं है, हर एक वकील है। लंदन एयरपोर्ट पर आओगे तो एक बड़ा तहज्जुद गुजार आदमी है, ड्राइवर, क्वालिफाइड ड्राइवर नहीं है, और एक काफिर है। किसी टैक्सी में बैठोगे, वो खुद कहता रहा कि मैं वकील हूं तुम्हारा, मैं तुम्हारा मजहबी रहनुमा नहीं हूं। और वाकई जो काम इस सारे मौलवी मिलकर कर सकते थे, आज भी एक छोटा सा गांव लेकर बताया भारत से, आज भी है उसको गालियां, वो तो हिम्मत नहीं पड़ती, लोग जूते मारेंगे अवाम में, कहने के अपनी मजलिसों में। भाई उसने एक काम किया, अल्लाह ने उससे काम लिया। हाँ, वो ये कहता था कि हजरत थानी में सबसे ऐसा आलिम मेरे पास है तो सबसे बड़ा आलिम है, सारे आलिम में एक तरफ हूं। उसने 39 में पाकिस्तान बनने के 8 साल पहले उन्होंने कहा भाई एक ममलकत तो बना रहे हैं इस्लाम के नाम पर, ये इसका निजाम क्या होगा? सबसे पहले इसका आइन और कानून क्या होगा, दूसरा निजाम तालीम क्या होगा, तीसरा इकोनॉमिक निजाम। इसके लिए कमेटी बनाई, और कमेटी में उसने अपने जैसे लोगों को नहीं शरीक किया। हजरत थानवी हुसैन इस पर रखने वाले, हाँ, मौलाना अब्दुल बारी नदवी खलीफा, मौलाना अब्दुल माजिद अरिबादी हजरत थानवी के खलीफा, और सरबराही डॉक्टर मौलाना सैयद सुलेमान नदवी खलीफा हजरत थानवी के। मौलाना मौदूदी, हालांकि मौदूदी साहब ने हमेशा कायदे आज़म के खिलाफ बकवास की है, लेकिन वो कुछ भी कहे मुझे, लेकिन एक आदमी अहल है इस लाइन का कि बैठे इस कमेटी में। डॉक्टर हमारे ये हमीदुल्लाह, काय के लिए उसने 10 बयान उसके मौजूद हैं। ये दोनों सिस्टम जो है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, ये इंसानियत को खून चूसने वाले, खंगालने वाले हैं, तबाह करने वाले हैं खून, ये लिहाजा इस्लामी निजाम जो सबका 10 बयान। तो ठीक है, एक आदमी ने एक अपना काम कर दिया, अब तुम उसको, जैसे मौलाना आजाद ने, मौलाना आजाद जैसा बसीरत वाला आदमी, लेकिन उनकी चलती नहीं थी, चलती इन मसलकी मौलवियों की थी, इन सूफियों की थी। हाँ, ये खुदा बने बैठे थे अपनी अपनी जगह पर। तो मौलाना आजाद ने जब देखा, उनका एक मकूला मौजूद है कि 10 लाख साल गुजर रहा है, हिंदू की तंग नजर खत्म नहीं होगी, और मुसलमान अपने सच्चे रहनुमाओं की के खिलाफ करेंगे हमेशा, जैसे मौलाना साहब के खिलाफ किया। जब हिंदू का असल चेहरा देखा उन्होंने आजादी के बाद, गांधी का देखा, नेहरू का देखा, वल्लभ पटेल तो था ही खबीस, और इसका देखा राजेंद्र प्रसाद का। हाँ, तो एक काम उसने किया कि वो बाहर के मुल्क से आते हुए अचानक कराची उतर गए, और उतर कर सीधा एक काम किया, 2-3 घंटे में कायदे आज़म की मज़ार फातह की। क्या ये नेशनल मौलवियों को, इन जमयती मौलों को इसमें कोई बसीरत है कि नहीं है? अकाबिर वाला दीन नहीं चलेगा, बदल इस्लाम गरीबान, ना उस दौर में चल सकता था, वसयऊद गरीबा, ना हजरत मेहदी के दौर में चलेगा। कुरान और सुन्नत वाला इस्लाम चलेगा, कुरान से जोड़ा हर मुसलमान को। शेख उल हिंद जब वापस आए तो 2 ही
प्रोग्राम दिए, एक तो किसी मुसलमान से तफरका नहीं करना है, और दूसरा ये कुरान को समझ कर पढ़ना। आज मौलवी इसके लिए तैयार नहीं। हर आदमी ने अब बड़े बड़े डेरे बना रखे अपने। देवबंद में 350 मदारुल उलूम जामियात, काहे के भाई? काश्मीर खानदान कहीं और भी बना सकता था। नागपुर से रायपुर तक 600 मील के इलाके में एक मदरसा नहीं था उस जमाने में, तो वहीं कब्जा जमाना जरूरी है। मदरसे के मुकाबले मदरसा बना। क्या सलाहियत इन मोहतिम साहबान की, इल्मी सलाहियत क्या है, रूहानी और तकवा कितना है? कुछ भी नहीं। बस असबद जहालियत, अपनी कौम अपनी बिरादरी को पैसे जमा करके बना लिया, बन गए काबिर। हाँ, किसी बुजुर्ग को घेर घार खिलाफत ले ली, बन गया। काहे क्या काबिर भाई? कोई बुजुर्ग नहीं। बुजुर्ग वो है जो अल्लाह के नबी ने जिनको बनाया था, सहाबा को, उनके तरीके पर चलो। हजरत जी मौलाना साहब से भी अर्ज करूंगा कि मौलाना इस रास्ते पर आगे बढ़े, कोई परवाह न करें इनकी। आप सहाबा, क्योंकि दीन कुर्बानियों से चलता है, अपने आप को पीसने से मिटाने से चलता है। हाँ, पैसे तकसीम करके बनियों की तरह मौलियों को जमीर खरीदने से दीन नहीं चलता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज जो सूरत हाल है वाकई इतनी खराब है कि मैं देख रहा हूं कि ये जो कोरोना आया है ये एक आम सा फ्लू है। हिंदुस्तान में कई बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं ये आम सा फ्लू है, ये डराया जा रहा है। ये जो मास्क लगा रहे हैं ना, मास्क में पतले से पतला मास्क जो होगा वो 8 गुना छोटा होगा उससे, ये जरसूमा, कोई नहीं रोक सकता उसे। हाँ, ये है कि एक बार अंदर चल गया तो फिर वो वापस नहीं निकल सकता और बीमार करेगा। अब तो तहकीकात यहां हो गई है कि वो जो दवा वैक्सीन बनाई है ना, उसमें क्या चीज है? डिप्रेशन करने वाला, इंसान को खुदकुशी पर आमादा करने वाला, और इंसान के जहन और दिमाग को की सलाहियत, इस किस्म की चीजें जमा करके। अभी इटली और नॉर्वे 4-5 यूरोप मुल्कों ने हिम्मत की कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। यहां की 7 यूनिवर्सिटियां और यूरोप की भी, उन्होंने कह दिया कि इससे क्या नताज हालात होंगे वो तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन अभी यह है कि जो भी लेगा वो बच्चा पढ़ने पैदा करने काबिल नहीं, लड़की हो या लड़का हो। अभी यह सूरत हाल है दुनिया में कि इनका 30 साल पहले 1990 में कजाफी ने कहा था कि ऐसी बीमारी तैयार कर रहे हैं कि इसकी दवा सिर्फ इनके पास होगी, दज्जाली ताकतों के पास। और यानी हमारे कामरान राज जो वाकई एक सेहूनियत पर जितना काम हुआ है, 4-5 आदमियों में एक है ये कामरान। इसकी किताब जो ये रखी हुई है, फ्रीमेसन दज्जाल, पहले इंग्लिश में फिर उर्दू में। मुफ्ती अबू लुबाबा जो बहुत मशहूर है दज्जाल के नाम पर किताब है, हाँ, उसमें भी असल बात वो है जो कामरान ने लिखी है। और जैद हामिद पता नहीं यूसुफ कज़्ज़ाब का खलीफा है क्या है ये, तो वो भी जो हीरो बन गया इस किताब में से बोल बोल कर। तो कामरान इसने किया, बहुत काम हुआ है, लेकिन मौलवियों को खबर ही नहीं किस तरह घेरे में ले लिया। अब इसका मकसद क्या है? 2 है। एक तो इन्होंने लिखा है, मैंने एक किताब लिखी थी तो उसमें 30 साल पहले लिखा था मैंने कि इनका यह मंसूबा क्या दुनिया की आबादी को सिर्फ 50 करोड़ पर लाना है। अभी 7 अरब से ज्यादा है, 7 बिलियन से ज्यादा है। इनको लड़ा लड़ा कर खत्म करना है। और 50 करोड़ वो जो वैक्सीन ले, वैक्सीन में एक ऐसा जर्रात अंदर जाकर एक चिप्स, फोन के चिप्स तरह बन जाते हैं और उस पर वो कंट्रोल कर सकते उसके हालात पर। हाँ, अब एक चीज और फितना आ रहा है, वो एक पासपोर्ट भी डिजिटल बनने वाले हैं। क्या मतलब? अभी तक ये था कि पासपोर्ट में इंसान की जो कमजोरियां हैं हर मुल्क में कि ये हमारा वफादार नहीं है, या ये मजहबी है, या लोगों को मजहब या जो भी ये क्या किससे मिलता है क्या करता है वो अपने मुल्क के पास ही। अब ये सारा
ہیڈ کوارٹر یعنی اسرائیل چل جائے گی ہر آدمی کی. کون کیا کرتا ہے